Yes, ma'am. Can we start? Okay. So very good morning, students. So today again I am going to start with the arithmetic progression practice set 3.2. Okay. At that day we have solved. Uh, First I have solved the ninth question. I told you as the sixth question and the ninth question both are nearly same. That's why we have taken that question first, and I told you that afterwards I will take the seventh question and the eighth question. Okay, and then the 10th question, because this question is quite different from that two questions, so that's I decided to take it afterwards. Okay, now see, this question is also very important. It may be asked for 3 marks. So now see this question, the 11th term, okay, and the 21st term of an AP are 16 and 29 respectively. Means, and in an AP the 11th term, that is 16. Okay, because the 11th term come first. Okay, that's why the 11th term is 16 and the 21st term is 29. Okay, then find the 41st term of that AP. आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपका जो 11th टर्म है वो आपका 16 है और जो आपका 21st टर्म है वो आपका 29 है. Then what you have to find out? You have to find out the 41st term of the AP. 41st term means आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए, आपको फर्स्ट टर्म चाहिए. Then only you will be able to find out the 41st term. जैसे हमने हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में हमने किया था, फाइंड आउट द 19th टर्म, फाइंड आउट द 24th टर्म, फाइंड आउट द 27th टर्म. ओके, तो उसमें लेकिन हमको क्या था बेनिफिट कि हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी था, हमारे पास फर्स्ट टर्म भी थी. ओके, दैट्स व्हाई इट वाज इजी फॉर अस. हमारे लिए बहुत इजी हो गया था कि हम क्या करें, फाइंड आउट करें. बट राइट नाउ वी डोंट हैव फर्स्ट टर्म, वी डोंट हैव कॉमन डिफरेंस. सो लेट्स find out first term and common difference. Okay, so let's start. So first we'll suppose first term is A, because we don't know what is A, and common difference is D. अभी हमें ये दोनों पता नहीं है, that's why we have to suppose first. जिस क्वेश्चन में हमें A और D नहीं दिया होता है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको जो स्टार्टिंग लेना है सॉल्यूशन की, आपको इसी से स्टार्टिंग लेना है. तो आपको पहले सपोज करना है. ओके, सो सपोज फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी. ओके, हमने इसको सपोज कर लिया. अब हम क्या करेंगे, एज पर द क्वेश्चन वी विल प्रिपेयर द इक्वेशन. हम पहले इक्वेशन बनाएंगे. पहले हम इक्वेशन बनाएंगे 11th टर्म की. ओके, सो द 11th टर्म इज, हम इसको पार्ट्स में करने वाले हैं बिकॉज ब्लैक बोर्ड इज शॉर्ट, दैट्स व्हाई. तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है. द 11th टर्म इज 16. ओके, लेट मी डू इट्स टू पार्ट. जो हमारा 11th टर्म है वो क्या है, 16 है. सो T11 इज इक्वल टू, ओके, लेट मी राइट फर्स्ट द फॉर्मूला. Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D. ओके, अब हम क्या करेंगे, 11th टर्म लेंगे. T11 इज इक्वल टू, वी डोंट नो A plus we know the n. What is the value of n? That is 11. 11 minus 1 D. Okay, so T11 will be, sorry, what is the value of T11? That is 16. So 16 is equal to A plus 11 minus 1, that is 10 D. So this is equation number 1. Okay, ये हमने अभी फर्स्ट इक्वेशन बनाई है. What is the first equation? A plus 10D is equal to 16. Okay, let me admit these people. Okay. Okay, अभी हमारा 11th टर्म आ गया. क्या था हमारा 11th टर्म? 16 था. So with the help of formula Tn is equal to A plus n minus 1D. मैंने यहाँ पर क्या किया, हमारी फर्स्ट इक्वेशन बना ली है. I can write this also. A plus 10D is equal to 16. हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं. Okay. अभी देखेंगे हमारा, अब 21st टर्म लेंगे. द 21st टर्म इज, कितना है हमारा 21st टर्म? 29 है. ओके, 29 है. तभी हम इसी फॉर्मूले से Tn इज इक्वल टू A प्लस
n minus 1 d. So T21 is equal to a plus 21 minus 1 d. So T21 कितना है हमारा 29 है. So in place of T21 हम क्या लिखेंगे 29 is equal to a plus 21 minus 1 20 d. So what will be your second equation? A plus 20d is equal to 29. Now we have these equations, equation 1 and equation 2. अभी आपने सॉल्व किया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. यू हैव सॉल्व दिस. आपने इसको सॉल्व किया है. इसमें आपने देखा है कि आपको किस तरीके से आप उसमें दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, एक्स और वाई, है ना. आपको पता है ना कैसे आप वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं. क्या करते हैं आप लोग? यू आर टेकिंग द टू इक्वेशंस, आफ्टर दैट the common factor you are cancelling and the second factor you are finding out. Okay, after that, after finding out the second factor, you are putting the value of the second factor in any equation and you are finding out the value of first factor. Okay, तो यहाँ पर ऐसे ही आपको करना है. Okay, in the same way you have to do. अभी हम ऐसे ही करेंगे. हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे. a plus 10d is equal to 16 और a plus 20d is equal to 29. Okay, take the screenshot. Then afterwards we will solve this. Take the screenshot. आप इसका screenshot ले लो. Then it will be easy for you. Okay? ठीक है, ये हमारे पास दो इक्वेशन है. अब मैं क्या करती हूँ, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगी. ओके, तो मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ. सॉल्व इक्वेशन 1 and 2. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. ओके, a plus 10d is equal to 16, a plus 20d is equal to 29. ओके, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं. ओके, अभी हम क्या करेंगे? ऑल हियर a and a is कॉमन. ओके, ये कॉमन है. हम इसको क्या करते हैं? हम इसको कैंसिल करेंगे. लेकिन यहाँ पर क्या है? The signs are like signs. यहाँ पर एक जैसे साइन है, प्लस साइन है, तो हम क्या करेंगे? माइनस लेंगे. As we will take the subtraction sign, all the sign will change. Here this plus will become minus, this plus will become minus. दोनों क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे. प्लस से माइनस से will कैंसल हो जाएगा. 20d minus 10d is equal to, okay, 29 minus 16 you will get 13. ओके, अभी हम क्या करेंगे? नाउ वी विल टेक minus 10d is equal to 13. So minus d is equal to 13 upon 10. आप 13 upon 10 लेंगे. यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक डेसिमल नंबर, एक पॉइंट लग जाएगा. आप कर सकते हैं इसको. d is equal to minus 1.3. दिस इज द वैल्यू ऑफ d. ये आपकी आ गई वैल्यू ऑफ d. ठीक है, अभी हमको क्या, कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करना है? अभी हमको a की वैल्यू फाइंड आउट करना है. ओके, सो अब हम इसको क्या करते हैं? इक्वेशन 1 में रख लेते हैं, बिकॉज इक्वेशन 1 इज इजी. सो पुट d इज इक्वल टू minus 1.3 इन इक्वेशन 1. ठीक है, हम इसमें इक्वेशन में रख लेते हैं. सो यहाँ पर जब हम इक्वेशन में रखेंगे, सो व्हाट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन? a plus 10d is equal to 16. So a plus 10 into minus 1.3 is equal to 16. अगेन ये क्या हो जाएगा? 10 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये अगेन 13 हो जाएगा. देखो यहाँ पर जब आपने इसको 10 से डिवाइड किया तो क्या आ गया आपका? 1.3. अगर आप इसको दोबारा से 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? अगेन ये 13 हो जाएगा. सो a minus 13 is equal to 16. ओके, ये माइनस आकर प्लस हो जाएगा. a is equal to 16 plus 13. So a is equal to 6 plus 3 9, 1 plus 1 29. ओके, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई a is equal to 29. ओके, अभी आप लोग इसका फास्ट देख लो आपने कैसे किया है. आपको कहाँ पर कुछ नहीं समझा है? पॉइंट आउट दैट थिंग. आफ्टर दैट वी विल डू. ओके, अभी हमारे पास a और
डी, दोनों वैल्यूज आ चुकी। अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट T41। ओके, तो अब हम ले लेते हैं T41 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ओके, सो T41 हमें फाइंड आउट करना है। सो a वैल्यू ऑफ a इज 29 प्लस n की वैल्यू 41 माइनस 1 into d is minus 1.3. Now we have put all the values. अब हम इसको सॉल्व करेंगे। मैंने आपको इसको सॉल्व करने का तरीका बता चुकी हूँ। पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लीकेशन करना है, फिर एडिशन करना है। 41 माइनस 1 40 इंटू माइनस 1.13 29 देन प्लस माइनस माइनस। नाउ डू द मल्टीप्लीकेशन। 13 4s are 0 देन 13 4s are कितना आ जाएगा आपका? 4 3s are 12 4 1s are 4 and 5 52.0. Okay, I think so. सॉरी, यहाँ पर मुझे डाउट आया था। देखो यहाँ पर दोबारा से एक बार ये इक्वेशन चेक करो। यहाँ पर रिवर्स सब्ट्रैक्शन हुआ। हियर दिस 2 माइनस विल कैंसल। देखो अगेन थोड़ा सा यहाँ मुझे लगा था कि कहीं कुछ तो मिस्टेक हो रहा है करके, यहाँ पर एक माइनस का मिस्टेक हुआ है। ओके, नाउ सी हियर, थोड़ा सा देख लेंगे इधर इसको। ये माइनस 20d था, ये प्लस 10d था। रिवर्स सब्ट्रैक्शन हुआ माइनस 10d। हियर आल्सो रिवर्स सब्ट्रैक्शन इज देयर। बोथ द माइनस विल कैंसल, योर d विल बी इन पॉजिटिव। माइनस इंस्टेड ऑफ माइनस देयर विल बी 1.3 ओनली। आई गॉट अ डाउट कि कुछ तो मिस्टेक हुआ है यहाँ पर। ओके, थोड़ा सा सिर्फ साइन चेंज करना है हमको। यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ओके, दिस 16 minus 13 you will get 13 only. Okay, so now we got here the value of a is 13 plus 41 minus 1 into 30 1.3. Okay, now see 13 plus 40 into 1.3, so 13 plus 14 13. When you will multiply this, so you will get 520. अभी यहाँ पर देखो, एक नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट, आप यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगा लोगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? ओनली 52. When you will add this number, you will get 65. Okay, so these are your answer. Okay, so you can take the screenshot. This type of question is in problem set also. देखो यहाँ पर problem set में भी है. If you have the book, take out your book. Question number 3, page number 79. आपके पास इस टाइप का है. You can see this. Point out all your doubts. Okay, we will clear the doubt. देखो यहाँ पर आपको इसमें है पेज नंबर 79 पर, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस सेट में एक ही है. ओके, ओनली वन क्वेश्चन इज देयर. फॉर मोर प्रैक्टिस यू कैन टेक अनदर द क्वेश्चन. देखो यहाँ पर आपको थर्ड क्वेश्चन है, देन फोर्थ क्वेश्चन है, आफ्टर दैट सिक्स्थ क्वेश्चन है. तो आप ऐसे क्वेश्चंस को लेकर हम जब प्रॉब्लम सेट सॉल्व करेंगे एट दैट टाइम हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं उस टाइम पर. अभी आपको एक में समझ में नहीं आएगा. आपको सिर्फ क्या करना है, आपको दो इक्वेशंस बनानी है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला T8. जब आपकी दो इक्वेशन बन जाती है तब आपको क्या करना है, आपको उसको सॉल्व करना है. जैसे फिर हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करते हैं वैसे ही आपको सॉल्व करना है, एंड देन यू विल गेट द आंसर. ओके, नाउ सी टेक अनदर क्वेश्चन, दैट इज द 8th क्वेश्चन. अब ये 8th क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा आपको मतलब काफी सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या आ गया, हमको समझ में नहीं आ रहा है. देखो 8th क्वेश्चन है 11 8 5 2 dash dash dash. In this AP which term is number
-151। सिंपल है क्वेश्चन, आपको उसको थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ आपको, ये एक एपी है 11852, ऐसे आपका स्टार्ट हो रहा है एपी, और आपको ये बोल रहा है कि किस नंबर पर -151 है। जैसे फर्स्ट नंबर पर 11 है, सेकंड नंबर पर 8 है, थर्ड नंबर पर 5 है, फोर्थ नंबर पर 2 है, मींस द नंबर्स आर डिक्रीजिंग। ओके, सो ऑब्वियसली एट लास्ट यू विल गेट द नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पर जो आपका एपी है, सो इन सॉल्यूशन राइट डाउन द एपी। जो आपका एपी है ना वो क्या है, 11 8 5 2 एंड द लास्ट नंबर इज -151। यही आपसे पूछ रहा है कि ये जो लास्ट नंबर है ये, दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज T3, दिस इज T4 एंड व्हाट इज दिस नंबर, Tn। ये कौन सा नंबर है? तो आपको बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है, किस नंबर पर है, किस पोजीशन पर है ना, क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन पर है, ये थर्ड पोजीशन पर, ये फोर्थ पोजीशन पर है, तो ये किस पोजीशन पर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास Tn है, आपके पास T1 है। ठीक है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लेंगे हम, a इज इक्वल टू क्या है आपका, a 11, d इज इक्वल टू T2 माइनस T1, T2 minus T1 means 8 minus 11. Okay, you will get -3. Therefore, value of D is -3. Okay, क्योंकि हमारा देखो नंबर डिक्रीज होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, दैट्स वाई आपका जो D आएगा वो क्या आएगा, आपका निगेटिव आएगा। ओके, यहाँ पर आपके पास वैल्यू ऑफ A है, आपके पास वैल्यू ऑफ D है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Tn। Tn का वैल्यू जो है वो -151 है, एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, किस पोजीशन पर है, किस नंबर पर है। अगेन यू विल टेक द फॉर्मूला of Tn. What is the formula of Tn? Tn is equal to a plus n minus 1d. Okay, तो देखते हैं हम फॉर्मूला Tn is equal to a plus n minus 1d. ओके, हम फॉर्मूला लेते हैं, Tn की वैल्यू कितनी है आपकी, -151, वैल्यू ऑफ a is 11 प्लस वैल्यू ऑफ n we don't know, वैल्यू ऑफ d is -3। हमने इस टाइप का क्वेश्चन भी सॉल्व किया है और मैंने आपको यहाँ पर प्रोसीजर बताया था, आपको स्टेप्स बताई थी कि आपको कैसे इन स्टेप को सॉल्व करना है। तो कैसे आपको इस स्टेप को सॉल्व करना है, पहले आपको क्या करना होगा, 11 को उधर लेकर जाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले स्टेप में 11 को यहाँ लेके जाते हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, सो -151, ओके दिस इज पॉजिटिव, इट विल बिकम नेगेटिव, is equal to n minus 1 into -3. ओके, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यू विल एड ओवर हियर। ओके, सो 1 + 1 निगेटिव में आएगा, 1 + 1 2, 5 + 1 6 एंड 1 -162, ओके इज इक्वल टू n minus 1 into -3। अब ये 3 क्या करेगा, मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, -162 डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल टू n minus 1। अब आप लोग बोलेंगे मैम यहाँ पर इसके साथ तो माइनस है, सो माइनस इट इज द निगेटिव नंबर साइन, ये निगेटिव नंबर है, दैट्स व्हाई इट्स साइन इज माइनस। एक्चुअली इसके साथ मल्टीप्लीकेशन है विद द अदर नंबर, ये जो दूसरा नंबर है ना इसके साथ ये मल्टीप्लीकेशन में, इसलिए यहाँ पर ये जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। Both the minus will cancel. Okay, 3 5s are 15. एक 1 is remaining, 3 4s are 12. तो यहाँ पर हमारे पास कितना आया, 54 is equal to n minus 1। अब ये -1 यहाँ जाकर क्या करेगा, प्लस करेगा, 54 + 1 is equal to n. So 54 + 1 55। तो ये किस पोजीशन पर है, -151, ये 55th पोजीशन पर है।
ओके, ये आपका 55th पोजीशन पर है। समझ में आया आपको? तो हियर यू कैन राइट डाउन, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, विच टर्म इज नंबर माइनस 151? So 55th term is minus 151, मतलब ये आपका T55 था। ओके, तो देखेंगे हम अगेन 11852 dash in this AP which term is number minus 151? इस पूरे AP में किस पोजीशन पर माइनस 151 है? सो वी हैव टेकन ऑल द एपीज 11, 8, 5, 2 एटसेट्रा। तो हमने यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, थर्ड, फोर्थ एंड द लास्ट टर्म इज माइनस 151। ओके, फर्स्ट टर्म हमने 11 ले लिया है, डी हमने फाइंड आउट करने के लिए T2 माइनस T1 लिया है, और हमारे जो लास्ट टर्म है दैट इज Tn, वो क्या है हमारा माइनस 151 है, और वी हैव टू फाइंड आउट n। हमने फॉर्मूला लिखा है Tn is equal to a plus n minus 1d. We have put up the values. Then we have started solving it by taking 11 from right hand side to left hand side. It was positive, it will become negative over there. Then minus 151 minus 11 minus minus plus, but the sign will be minus only. 151 plus 11, you will get 162. Okay, minus 162 we will get. Then we will take this minus 3 which is in the multiplication form, it will go in the division form. वो किसमें चला जाएगा, डिवीजन फॉर्म में चला जाएगा, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा. Then we will do the division, simplification will do, we will get 54. So n minus 1 is equal to 54. Then this minus 1 will go from right hand side to left hand side, it will become positive. Then we will add this number, so 54 plus 1 we will get 55. So in this way you can solve this type of question. Okay, आप लोग बार बार लेफ्ट होते हो, बार बार ऐड होते हो, इससे कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है आपको. Okay, now we'll see the last question. 9th question we have solved. 9th question हमने सॉल्व कर लिया था पहले ही कि कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 10 से लेके 250 तक 4 से डिविजिबल हैं, ये हमने पहले सॉल्व कर लिया है. ओके, क्या था हमारा 9th क्वेश्चन, इन द नेशनल नंबर फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4? ये हमने पहले सॉल्व कर लिया था, कितने नंबर्स हैं जो 4 से डिविजिबल होते हैं 10 से लेके 250 की रेंज तक. ओके, नाउ टेक द 10th क्वेश्चन इन एन एपी. इन एन एपी देखो, जब मैं आप क्वेश्चन रीड कर रही हूँ आप अच्छी समझो. 17th टर्म इज, 17th टर्म इज, जो 17th टर्म है T17 जो है, 17th टर्म इज 7 more than its 10th term. यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो आपकी 17th टर्म है वो 10th टर्म से कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है, मतलब दोनों के बीच में 7 का डिफरेंस है. फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपको डी फाइंड आउट करना है. फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपको ए नहीं फाइंड आउट करना है, आपको जस्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है. बहुत सिंपल है, देख लेंगे हम. तो पहले हमको ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था जहां पर आपको फर्स्ट टर्म नहीं पता हो, जहां पर आपको डी नहीं पता हो, तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि आपको पहले सपोज करना होगा व्हाट इज ए एंड व्हाट इज डी. ओके, सो सपोज फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी. ओके, अब हम क्या करेंगे, एज पर द इक्वेशन क्वेश्चन वी विल प्रिपेयर द इक्वेशन. ओके, तो यहाँ पर हम इक्वेशन को प्रिपेयर करते हैं. क्या है हमारी इक्वेशन, जो हमारा 17 टर्म है, मतलब जो T17 है, एज पर द क्वेश्चन
यस पर द कंडीशन, क्या कंडीशन हमारी 17 टर्म T17 इज मतलब इज इक्वल टू इज 7 more means plus 7 more than its 10 term T10. देखो 17th term is means is equal to so 17th term means T17 is equal to 7 more 7 plus 7 more 7 ज्यादा है T10 से. So as per the condition ही हमारी बनती है, we can write down like this also T17 is equal to T10 plus 7. Okay, now with the help of formula मैं इसको पुट अप करती हूँ. अब कैसे पुट अप करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी समझ लो. T17 है ना आपका, मैं इसको पहले अलग से बताती हूँ कैसे हम लिखते हैं T17 को. कैसे लिखते हैं हम? T17 is equal to A plus n minus 1D. n की जगह हम क्या रखते हैं 17. So T17 is equal to A plus 17 minus 1D. Okay, तो यहाँ पर क्या आ जाता है आपका T17 is equal to A plus 16D, है ना. मतलब मैंने आपको इससे पहले बताया था ना आपको कि जब भी हमारा जो T का जो टर्म का नंबर होता है आगे जाकर D की वैल्यू 1 कम हो जाती है, तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे? डायरेक्टली हम लिखेंगे यहाँ पर T17 की जगह हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे? A plus 17 minus 1D. समझ में आया ना मैंने क्यों लिखा है ये? या फिर एक काम करते हैं कि स्टेप बढ़ा देती हूँ. A plus n minus 1D is equal to T10 को भी ऐसे लिखती हूँ मैं A plus n minus 1D is equal to सॉरी प्लस 7 है यहाँ पर, तो यहाँ हमारा प्लस 7 लिख लेते हैं. वहां नहीं इसलिए नहीं लिखा है. अब n की जगह क्या लिखेंगे? हम 17 लिखेंगे. A plus 17 minus 1D is equal to A plus n की जगह कितना लिखेंगे? 10 minus 1D plus 7. ओके, अब 17 minus 1 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा. A plus 16D is equal to A plus 9D plus 7. Now A and A will cancel, है ना, कैंसल हो जाएगा A और A. Now अभी ये क्या करेंगे? 9D को हम उधर लेकर जाएंगे, तो 16D minus 9D is equal to 7. ठीक है, so 16 minus 9 you will get 7. 7D is equal to 7. Therefore D is equal to 7 upon 7. You will get D is equal to 1. आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना था ना, ओनली कॉमन डिफरेंस आ गया आपका. सिंपली देखो T17 था, T17 is equal to 7 more means 7 plus T10. 10 टर्म से 7 मोर था. फिर हमने वैल्यूज रखे फॉर्मूला की हेल्प से. T17 की जगह क्या लिखा? A plus n minus 1D. T10 की जगह भी लिखा A plus n minus 1D. और यहाँ पर 7 था इसलिए 7 लिख दिया. उसके बाद हमने क्या किया? हमने यहाँ पर वैल्यू पुटअप की है n की. T17 है इसलिए हमने लिखा 17 minus 1. यहाँ पर हमने लिखा 10 minus 1. 17 minus 1 हुआ 16D. 10 minus 1 हुआ 9D. A and A will cancel. ठीक है, बचा आपके पास 16D और 9D. 9D उधर गया आपका राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में सब्ट्रैक्शन हुआ. यू विल गेट 7D इज इक्वल टू 7. तो यहाँ पर हमने डिवाइड किया. यू विल गेट कॉमन डिफरेंस 1, क्योंकि आपसे सिर्फ कॉमन डिफरेंस पूछा था. फाइंड द कॉमन डिफरेंस. टेक द स्क्रीनशॉट. Now here your practice set 3.2 has been completed. Okay, now we'll start practice set 3.2. But before starting 3.2 पहले हमको देखना है कि एक्चुअली उसमें है क्या और हमको क्या सीखना है और क्या समझना है. which formula we have to use. Okay, take the screenshot. Okay, so हम स्टार्ट करते हैं. सम ऑफ n numbers. Sum of n numbers, or we can say sum of n terms.
बिकॉज नंबर्स को हम इसमें क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। तो देखते हैं हम सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। इन एन एपी, एपी में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस किधर भी हो, एपी में होना चाहिए। सम ऑफ एन टर्म्स कैसे ऐड करना है, देखो इससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ विच इज गिवन इन योर बुक दैट इन ए स्कूल ऑफ जर्मनी, एक स्कूल ऑफ जर्मनी में टीचर हैड सम वर्क, टीचर को कुछ काम होता है, एज यू ऑल अवेयर अबाउट दिस, इन डे टू डे लाइफ टीचर्स हैव अ लॉट ऑफ वर्क, ओके, during the classes and all, so they are giving some work to the classes, okay, तो आप, हम टीचर्स क्या करते हैं, आपको काम दे देते हैं कि आप ये कर लो, आप वो कर लो, कंप्लीट दिस, कंप्लीट तो, या फिर हम कुछ सम्स दे देते हैं, दैट सॉल्व दिस सम, तो लाइक दैट आल्सो कार्ल लगॉस की क्लास में उसके टीचर ने क्या किया, उसके टीचर कुछ काम था तो उसने क्या किया, एक काम दिया और उसको सोचने लगा कि मैं ऐसा एक लेंगे टास्क देता हूँ स्टूडेंट्स को जो बहुत टाइम लेगा और जब तक कि मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, ओके, तो उसने उन लोगों को एक लेंगे टास्क देने का डिसाइड किया, यस आई विल गिव देम सम लेंगे टास्क। उसने क्या टास्क दिया, उसने कहा कि आपको 1 से लेकर 100 तक एडिशन करना है, एडिशन करना है, मतलब 1 + 2, 2 + 3 ऐसे करना है कि 1 में 1 + 2, 2 + 3, 3 + 4 ऐसे ले जाकर आपको यहाँ पर +100 तक लेकर जाना है। तो आप 1 में 2 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है, फिर 3 में आप 3 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, फिर 6 में आप 4 ऐड करोगे तो आपको 10 मिलेगा, फिर 10 में आप 5 ऐड करोगे तो आपको 15 मिलेगा। तो ऐसे ही पूरा 100 तक जाना था एंड ऑब्वियसली बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, और टीचर ने सोचा कि अगर मैं ये लेंगी टास्क दूंगा बच्चों को तो बच्चे मुझे सुकून से काम करने देंगे और मेरा काम भी कंप्लीट हो जाएगा, बच्चों को उसने ये टास्क दे दिया। थोड़ी देर के बाद एक बच्चे ने अपनी स्लेट को नीचे रखा और कहा, टीचर ने पूछा कि व्हाई पुट डाउन योर स्लेट, तो उसने कहा कि यस आई कंप्लीटेड माय वर्क, जैसे आप लोग हमेशा बोलते हो ना, यस टीचर आई फिनिश माय वर्क, आई कंप्लीटेड माय वर्क एक्सेट्रा, तो ऐसा आप लोग बोलते, तो उसने भी कहा, so he becomes so surprised that how he completed this task in a very short span of time, इतने कम टाइम में उसने कैसे कर लिया, वो सोचने लगा। तो उसके बाद उसने देखा उसका स्लेट उठाकर, so how he have done, उसने कैसे किया था, उसने क्या किया, 1 लिखा, 2 लिखा, 3, 4, उसके नीचे उसने रिवर्स में लिखा 100, 99, 98, 97, ऐसे ही उसने यहाँ तक रिवर्स में करते आया और फिर इनको ऐड किया उसको, 100 + 1 101, 99 + 2 101, 98 + 3 101, 97 + 4 101 और 100 + 1 101, ऐसे उसने पूरा किया, ठीक है, सब में 101 आया, 101 आया, उसको समझ में आ गया कि आई विल गेट द सेम नंबर्स। उसके बाद उसने ऐसा 100 टाइम्स किया था, इसलिए उसने क्या किया, 101 को मल्टीप्लाई किया 100 टाइम्स, उसने 100 टाइम्स किया ना ऐसा काम, उसके बाद उसने मल्टीप्लाई किया, तो ही गॉट 10100। अब उसको उसी 1 से लेके 100 तक करना था, उसने डबल लिया था, मतलब दो सीरीज ली थी, इसने उसका हाफ कर दी, so he got 2 5s are 10 and 2 5s are 10, 5050 उसको मिला, है ना। और उसके बाद जब टीचर ने आंसर अपना चेक किया, वेदर माय आंसर इज करेक्ट और नॉट, उसका आंसर करेक्ट आया, so he becomes so surprised that in a very उसको एक मेथड मिल गया कि किस तरीके से किसी भी एपी में, बट द कंडीशन शुड बी एपी, देखो ये पूरे नंबर्स एपी में थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब एपी के नंबर्स है ना, कंटिन्यू है, इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, वो सेम है, ठीक है, वो सेम है, इसीलिए वो कर पाए इस चीज को, अगर वो अगर वो प्रोग्रेशन में नहीं होते तो ये टास्क करना मुश्किल होता, ओके। तो यहाँ पर उसने इस तरीके से इसको कंप्लीट किया। आफ्टर दैट उसने एक बुक पब्लिश की जिसमें उसने बताया कि दैट हाउ यू कैन ऐड सच नंबर्स,
अब हम भी क्या करते हैं, एन टर्म्स को लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा एपी क्या होता है, ए फर्स्ट, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और लास्ट नंबर क्या होता है आपका, ए प्लस n माइनस 1d। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था। अभी हम क्या करते हैं ना, ऐसे काम करते हैं कि क्या हमको फॉर्मूला क्या मिलता है, हम ऐड करते हैं, एसएन ऐड करते हैं, 2 टाइम्स ऐड करेंगे हम भी, है ना। क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म लेंगे और लास्ट टर्म लेंगे, ए प्लस n माइनस 1d, है ना। ये एक नंबर हुआ हमारा। जैसे हमने 1 प्लस 100 लिया था, तो ऐसे ही हम क्या लेंगे, 1 की जगह पर हम a लेंगे और 100 की जगह पर हम क्या लेंगे, a प्लस n माइनस 1d लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर लेंगे। ठीक है, अब हमारा सेकंड नंबर क्या है, a प्लस, यहाँ पर देखो, इसके पहले क्या आएगा, a प्लस n माइनस d से पहले क्या आएगा, a प्लस n माइनस 2d आएगा। जैसे ये समझ लो ये 99 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे ही ऐड करेंगे, a प्लस n माइनस 1d, फिर सेकंड नंबर लेंगे हम प्लस a प्लस 2d, ये हमारा सेकंड नंबर है, a प्लस 2d ये हमारा सेकंड नंबर। तो हमारा सेकंड लास्ट नंबर क्या रहेगा, a प्लस n माइनस 2d प्लस a प्लस n माइनस 2d। ऐसे हम ये नंबर्स ले लेंगे। ठीक है, हमने ऐसे नंबर्स ले लिए हैं। अब ऐसे ही हम करते जाएंगे तो अब हमारे पास क्या आएगा, एस इन इज इक्वल टू a प्लस a 2a, है ना। a प्लस से कितना आया, 2a प्लस n माइनस 1d, ये इसका आ गया। ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया, a प्लस d, सॉरी a प्लस d प्लस a माइनस 2d। ठीक है, तो अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं। a प्लस a 2a हो गया, क्या बचा हमारे पास, प्लस d प्लस n माइनस 2d। अब यहाँ पर हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, 2a प्लस d प्लस nd माइनस 2d। अब ये d माइनस d कितना हो जाएगा, d में से d जाएगा, 2d जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास, ओनली d बचेगा। तो ये जाएगा 2a प्लस nd माइनस d, nd में dd कॉमन निकाल लेंगे, 2a प्लस d n माइनस 1, ये आपका आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1d। इसको सॉल्व करना पड़ा आपको, क्योंकि आपको आगे काम में आएगा ये सब चीजें। अगेन क्या आया हमारे पास, 2a प्लस n माइनस 1d, 2a प्लस n माइनस 1d। अगर हम ऐसा n टाइम करते हैं, बार बार करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, Sn इज इक्वल टू 2Sn रहेगा, क्योंकि हम बार बार कर रहे हैं, हमको 2 रो लेना है। 2Sn, जैसे हमने 100 को 2 बार लिया था ना, एक क्या लिया था हमने, 1 प्लस 100 लिया था, और एक हमने क्या लिया था, 100 प्लस 1 लिया था, तो 2 टाइम्स किया था। अगर हम इसको ऐसे 2 टाइम्स करेंगे जैसा कार्ल गॉस ने किया था, तो 2Sn आएगा, और n टर्म कर रहे हैं, मतलब n टाइम्स कर रहे हैं, तो n टाइम्स आपको क्या मिलेगा, 2a प्लस n माइनस 1d। n टाइम करें, तो n टाइम भी करेंगे तो आपको क्या आएगा, 2a प्लस n माइनस 1d, 2a प्लस n माइनस 1d, बार बार वही आएगा। अब ये क्या करेंगे, 2 को यहाँ पर डिवाइड में ले आएंगे, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1d। सो दिस इज योर फॉर्मूला। ये आपका फॉर्मूला रहेगा, क्या फॉर्मूला रहेगा, 2a प्लस n माइनस 1d n बाय 2। तो ये आपका फॉर्मूला है। आपको डिराइव करने के लिए नहीं आता है, जस्ट फॉर योर नॉलेज, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए हम लोग बताते हैं आपको कि ये कैसे आया है। तो मैं यहाँ पर आपको पहले Sn का फॉर्मूला लिख देती हूँ और Sn का मीनिंग बता देती हूँ। Sn का मीनिंग है सम ऑफ nth टर्म, Sn सम ऑफ s, सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1d।
सो दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है एस एन का सम करने का। इसमें आपको सॉल्व एग्जांपल दिया हुआ है पेज नंबर 70 पर। इसका और भी फॉर्मूला है, मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर उसका एक फॉर्मूला और है जो हम अभी देखेंगे क्या है वो फॉर्मूला। ये एक फॉर्मूला हो गया, अभी इसको हम साइड में रखते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं एक सॉल्व एग्जांपल दिया हुआ है आपको पेज नंबर 70 पर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर। अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो आप कैसे करोगे। अब देखो यहाँ पर अगर हम एपी बनाएंगे तो a इज इक्वल टू 1 रहेगा, b इज इक्वल टू भी 1 रहेगा, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश 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 n। फर्स्ट टर्म 1 है और लास्ट टर्म n है। ठीक है, ऐसे है, मतलब हमारा एपी क्या है 1 2 3 डैश 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 n। मतलब लास्ट टर्म भी पता है आपको टीएन भी पता है, लास्ट टर्म इन है। फर्स्ट टर्म भी आपको पता है। अगर इसका एडिशन करना है तो आप कैसे करोगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 अंडर ब्रैकेट। यहाँ पर 2a प्लस एन माइनस 1d लिखने की बजाय आपको लिखना है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, दोनों फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। जब आपको फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दोनों पता है तब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो हम दोनों फॉर्मूले का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी मैं इसको फाइंड आउट करती हूँ। n/2 फर्स्ट टर्म a है मेरा और लास्ट टर्म क्या है हमारा n है। ठीक है, सॉरी, फर्स्ट टर्म 1 है हमारा 1 और लास्ट टर्म हमारा क्या है n है। n/2 अंडर ब्रैकेट n प्लस 1, तो हमारा आ जाएगा n ब्रैकेट n प्लस 1 रीअरेंज करते हैं डिवाइडेड बाय 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो आपको मैंने दो फॉर्मूले बताए हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1d और एक है n/2 अंडर ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 3.3, जिसमें आपको सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। सो प्रैक्टिस सेट 3.3। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका एक्टिविटी दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 3, s 27 आपको फाइंड आउट करना है, मतलब सम ऑफ 27 नंबर्स। एस एन इज इक्वल टू, लेट मी राइट द एक्टिविटी फर्स्ट, n/2 बहुत पूछता है यार ये एक्टिविटी। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्टिविटी में क्या हमको दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन क्या था एक्चुअली। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी आर 6 and 3 रेस्पेक्टिवली।
फर्स्ट टर्म 6 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, आपको फाइंड आउट करना है S27, मतलब आपको S सम ऑफ 27 टर्म आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको फॉर्मूला दिया हुआ है Sn इज इक्वल टू n बाय 2। ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आएगा 2a आएगा, फॉर्मूले का 2a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पर आपको हाफ मार्क्स मिल गए। If you know the formula and if any box is empty in a formula, you will get half marks immediately। आपको कुछ करना नहीं है, आपको immediately half marks मिल गए 2a लिखने के। उसके बाद अब यहाँ पर आपको सब लिखा हुआ है, n की जगह पर 27/2, 2a डायरेक्टली किया हुआ, a की वैल्यू 6 थी, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 6 12 यहाँ पर आ गया, प्लस n की जगह 27 माइनस 1, d की जगह क्या आएगा, d है हमारा 3, आपने जस्ट 3 लिखना है एंड यू विल गेट द मार्क्स। देखो भाई कितनी इजीली मिल गई आपको एक्टिविटी मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2a जो होता है ना आपका 2a 3a दोनों एक्टिविटी होता है। तो अगर आप एक्टिविटी सॉल्व करते हो ना, आपको एक्टिविटी में 6 and 6 ऐसे अबाउट 10 मार्क्स मिल जाते हैं आपको, सॉरी 9 मार्क्स। तो यहाँ पर देखो ये हमने 3 लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पर डायरेक्टली बॉक्स दिया हुआ, मतलब आपको ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करना है, पूरे ब्रैकेट में क्या आता है वो आपको बताना है। तो हम यहाँ पर पहले इसको सॉल्व करते हैं अलग से। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर रफ पेज, ओके। सो 12 प्लस 27 माइनस 1, तो पहले हम क्या करते हैं, हमेशा इसको सॉल्व करते हैं। 27 माइनस 1 26 मल्टीप्लाइड बाय 3, सो 12 प्लस 26 इंटू 3, 12 प्लस 3 6 18, 3 2 6 and 1 7, 8 plus 2 10, 7 8 9 90। देखो आया ना आपका 90 सॉल्व करने पर। 26 को 3 से मल्टीप्लाई किया 78 आया, उसको 12 में ऐड किया यू गॉट 90। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली क्या लिखना 90। अब देखो यहाँ पर डायरेक्टली 45 आया, कैसे 45 आया होगा, 90 को हमने 2 से डिवाइड किया होगा, है ना, तो आपका कितना आया होगा 45। 2 4 8, 1 इज रिमेनिंग, 2 5 10, 45। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा आंसर 12 15। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, बहुत इजी मल्टीप्लीकेशन है, आपको आता होगा मल्टीप्लीकेशन करना, आप मल्टीप्लाई करके आप आंसर लिख सकते हो। इसमें यह है कि आपको बड़े बड़े नंबर से मल्टीप्लीकेशन करना रहेगा। लास्ट में जब आता है कोई नंबर तो बहुत बड़े बड़े मल्टीप्लीकेशन है, तो यू हैव टू कमांड ओवर, तो आपको कमांड होना चाहिए करने के लिए। So this was the first question, बहुत easy question है, activity based question है। Now today we will continue from the same exercise, from the same practice set, and we will solve the remaining questions. Okay, so I hope you understand, but still if you have any doubt you can ask me the doubts fast. You have 2 minutes. Unmute yourself and ask me the question. Ask me your doubts. बोलो बच्चे, स्टूडेंट्स, इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क मी योर डाउट। देखो आपको टीएन का फॉर्मूला याद रखना है, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। ओके, आपको एसएन का फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन एसएन में आपको देखो एसएन का जो क्वेश्चन है ना वो 1 मार्क्स के लिए कभी आता ही नहीं है। जैसे टीएन में आ जाता है 1 मार्क्स के लिए कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन ये जो एक्सरसाइज है ना, इस एक्सरसाइज में आपको कभी भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, ये एक्टिविटी टाइप के, और एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है। इसके अंदर फॉर्मूला में एम्प्टी स्पेस होती है, तो आपको दोनों फॉर्मूला याद रखना है, 2a n by 2 2a plus n minus 1d, n by 2 अंडर ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, आपको दोनों याद रखना है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे यहाँ पर मैं यूज कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो यूज इट। ठीक है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म आपको पता है, आपको इतने बड़े फॉर्मूले में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म ऐड करना है, n by 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिनिश। ओके, तो किसी ने भी हैंड रेज नहीं किया है, सो थैंक यू सो मच। अगेन टुमारो ज्वाइन मी, बट ज्वाइन बिफोर ओनली
in between don't join because we are also getting disturbed. Okay, but still if you have any problem, network problem, then no problem. Okay, so thank you so much everyone. Not today, tomorrow again we will meet and we will again take this exercise. Okay, ma'am, shall I leave? Ma'am, shall I leave? Yes, ma'am. Wind up the lecture. Yes, yes.